Hello everyone, welcome back to Nirja Education. Today in this video, we are going to discuss about common and proper nouns. Dear children, I hope that you all might be familiar with this word noun. शायद से आप सबको noun का मतलब पता होगा, right? We had already discussed about noun in my previous videos. तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने already nouns के बारे में डिस्कस कर लिया है. So now we will discuss about common nouns and proper nouns. These two are the different types of nouns. So one by one we will understand each of them. ठीक है, एक एक करके हम दोनों nouns के बारे में पढ़ेंगे. So first we will discuss about common nouns. Common मतलब क्या होता है? Common हम अधिकतर ये word use करते हैं, means commons मतलब कुछ general चीज़, right? So same way in nouns there are two types of nouns. One is common noun and the another one is proper noun. So the definition of common noun is the name that we give to all types of people, places, animals and things in general are called common nouns. इसका मतलब है कि जितनी भी चीज़ें, जैसे कि कोई इंसान है या तो फिर कोई जानवर है, कोई चीज़ है या किसी जगह का नाम हम जनरल में यूज़ करते हैं उसका नाम, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? कॉमन नाउन्स कहोगे, ठीक है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. द नेम दैट वी गिव टू ऑल टाइप ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स in general are called common nouns. And what are the examples of common nouns? Table, house, river, boy, tree, dog and girl. These all are common nouns. ये सारे के सारे क्या है? Common nouns है. See, table, it is a thing. तो ये general common noun हुआ, right? It is a thing. Then house. House is a common noun for place. Then river. River is also a place. It is a common noun for place. Then boy. Boy is also a common noun and it is used for people, right? A person. Then tree. Tree is also a common noun. It is used for a thing. Then dog. Dog is also a common noun used for an animal. And girl, it is also a common noun used for a person or a people, right? So these all are the examples of common noun. So now we will discuss about proper nouns. ठीक है? So first we will see the definition of proper nouns. So nouns that name particular or specific people, places, animals, things, days of week, months, festivals are called proper nouns. तो इसका मतलब है कि ऐसे nouns जो किसी चीज़ का particular या तो फिर specific नाम है, right? Those things which have a particular or a specific name, these type of names or nouns are known as proper nouns. किसी भी place का specific name या किसी एनिमल का स्पेसिफिक नेम या किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम या तो फिर जो हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं उनके जो नाम है, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये सारे के सारे भी कैसे हैं? प्रॉपर नाउन्स है. देन द मंथ्स, तो जितने भी हमारे पूरे साल के जितने भी महीने हैं उनके जो नाम है वो भी सारे क्या है? प्रॉपर नाउन्स. लाइक January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. These all are the proper nouns. Then the festivals, right? Different type of festivals, their names, these all are included in proper nouns. जो festivals होते हैं वो भी क्या है? Proper nouns है. So let's see some example. Here the first is सुनीता. तो यहाँ पे ये जो सुनीता एक लड़की का नाम है, राइट? तो ये उसका नाम है, एक स्पेसिफिक नेम है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. देन कम्स रेड फोर्ट. तो रेड फोर्ट वो क्या है? एक प्लेस है, राइट? तो प्लेस तो वो है लेकिन उसका भी नाम है, उस जगह का नाम क्या है?
Red Fort. That place have a particular name. So this is the proper noun for a place. Then Leo. Leo वो एक एनिमल का नाम है, राइट, एक कुत्ते का नाम है. तो एनिमल डॉग तो है, लेकिन उस डॉग का भी एक स्पेसिफिक नाम है, और क्या नाम है? लियो. सो दिस इज ए प्रॉपर नाउन. देन गुलिवर्स ट्रैवल. इट इज अ नेम ऑफ अ बुक. बुक तो है, बुक बहुत सारी अलग अलग तरह की होती है. सो बुक इज अ कॉमन नेम, बट उस बुक का भी एक स्पेसिफिक नेम है. तो क्या नेम है? गुलिवर्स ट्रैवल. इट इज अ नेम ऑफ ए नॉवेल, राइट. इट्स अ नेम ऑफ ए बुक. तो ये क्या हुआ? उसका प्रॉपर नाउन हुआ. देन सैटरडे. सो इट इज द नेम ऑफ अ डे, राइट. इट इज द नेम ऑफ ए डे. तो सैटरडे, डेज तो बहुत है, अलग अलग 7 डेज होते हैं, लेकिन हम किस डे की बात कर रहे हैं? सैटरडे की. तो यस, सैटरडे इज ए प्रॉपर नाउन. द नेक्स्ट इज डिसम्बर. तो डिसम्बर, राइट, मंथ्स तो होता है बहुत अलग अलग तरह के मंथ, पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिसम्बर मंथ की. सो हियर डिसम्बर इज द प्रॉपर नाउन. देन डेयरी मिल्क, राइट, इट्स ए चॉकलेट. चॉकलेट्स तो है, बहुत अलग अलग तरह की चॉकलेट्स है. चॉकलेट इज ए कॉमन नेम, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डेयरी मिल्क. यहाँ पे हम डेयरी मिल्क की बात कर रहे हैं. सो डेयरी मिल्क इज ए प्रॉपर नेम. देन राज. इट इज अ नेम ऑफ अ बॉय. So boy, we had already seen that boy is a common name, but here we are talking about Raj. हम यहाँ पे राज की बात कर रहे हैं, तो राज is a proper name. Then Delhi. तो Delhi is a name of a city, right? तो there are so many different type of cities, but here we are talking about Delhi. यहाँ पे हम particularly और specifically दिल्ली की बात कर रहे हैं. So Delhi is a proper name. तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है. कॉमन नेम्स आर दी जनरल नेम्स विच वी यूज फॉर डिफरेंट पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, एंड प्रॉपर नेम्स आर द नेम्स विच वी यूज फॉर अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, द डेज ऑफ वीक, देन मंथ्स and festivals, right? So now children, let me explain you it in a very simpler way, right? There are so many girls are standing in one corner, right? बहुत सारी लड़कियां एक कॉर्नर में खड़ी है और मुझे एक ही लड़की को बुलाना है. तो अगर मैं किसी को कहूँगी कि उस लड़की को बुलाओ, तो किसी को पता चलेगा कि मैं किस लड़की की बात करूँ? वहाँ पे तो इतनी अलग अलग लड़कियाँ खड़ी है, राइट? तो नो वन विल अंडरस्टैंड दैट whom आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, राइट? वो किसी को पता नहीं चलेगा. बट अगर मैं उसमें से कहूँगी कि प्रिया को बुलाओ, देन एवरी वन विल अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिया, राइट? मैं प्रिया को बुलाने की बात कर रही हूँ. तो दे कैन कॉल प्रिया वेरी इजीली. सेम वे अगर मैं कहूँ कि मुझे एक चॉकलेट दो, बहुत सारी चॉकलेट है, अलग अलग तरह की चॉकलेट्स वहाँ पे पड़ी है, बट अगर मैं कहूँगी मुझे चॉकलेट दो, तो किसको क्या पता चलेगा कि मुझे कौन सी चॉकलेट चाहिए? वहाँ पे तो अलग अलग तरह की बहुत सारी चॉकलेट है, सारी चॉकलेट ही पड़ी है वहाँ पे, तो कोई मुझे सारी दे देगा, ठीक है? या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे ना मिले, तो मुझे स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि मुझे डेयरी मिल्क चाहिए या मुझे किट कैट चाहिए, तो वो सामने वाला इंसान हमें वही पर्टिकुलर चॉकलेट देगा. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर नाउन, ओके? एंड द अनदर थिंग इज कि जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं, सो द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन शुड बी कैपिटल. प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है? एंड वेन एवर वी राइट एनी कॉमन नेम, एट दैट टाइम फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल लेटर, राइट? इफ इट इज़ नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट? अगर कोई भी कॉमन नाउन है तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? स्मॉल लेटर होगा. अगर वो किसी सेंटेंस में फर्स्ट ही वर्ड है, राइट, तो वो कैपिटल हो सकता है, अदरवाइज वो कैसा होगा? स्मॉल लेटर होगा. सो रिमेंबर दिस कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा. लेट मी एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंडिया, राइट? इंडिया. सो दिस इज अ प्रॉपर नेम, ओके चिल्ड्रन? तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई जो है वो कैसा होगा? कैपिटल होगा.
आइदर इट इज इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस और एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, बट आई कैसा होगा, कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में यूज हो या तो फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो, हमेशा प्रॉपर नाउन्स का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। देन कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन है जैसे कि इंडिया तो है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, राइट। अब कॉमन नाउन इट इज अ नेम ऑफ अ सिटी, राइट। तो सिटी ये क्या हो गया, ये कॉमन नाउन है, इट इज अ कॉमन नाउन फॉर प्लेस। सिटी एक जगह का नाम है, राइट, एक प्लेस का नाम है, तो सिटी इज ए कॉमन नाउन। तो यहाँ पे ये जो देखो सी है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, राइट। मोस्टली ये सेंटेंस के मिडिल में ही यूज होगा, तो एट दैट टाइम यू हैव टू राइट इट इन ए स्मॉल लेटर, द फर्स्ट लेटर शुड बी small, okay, don't forget this, okay. So dear children, now let's understand the concept of common noun and proper nouns through just a small activity, okay. तो बच्चों अभी हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, 4 sentences I have written on this board and from that sentence we have to find the common noun and proper noun. इस सेंटेंस में से हमें एक कॉमन नाउन ढूंढने हैं और प्रॉपर नाउन ढूंढने हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज माई मदर्स नेम इज ऋतु, मेरी मम्मी का नाम ऋतु है। तो इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है, सो मदर इट इज ए कॉमन नाउन एंड ऋतु it is a proper noun. So here we will write mother and here we will write Ritu. See? Then next is my favorite city is Ahmedabad. मेरी favorite city Ahmedabad है. So here city it is the common noun and Ahmedabad it is the proper noun. तो यहाँ पे हम सिटी इधर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट इज माई डॉग सिम्बा इज प्लेइंग विथ ए बॉल, मेरे जो डॉग सिम्बा है वो बॉल से खेल रही है, ठीक है। तो हियर डॉग इट इज ए कॉमन नाउन एंड सिम्बा इट इज ए प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे एक और नाउन है कॉमन नाउन, वो क्या है, बॉल, यस। सो डॉग एंड बॉल दीज आर द कॉमन नाउन्स एंड सिम्बा इट इज ए प्रॉपर नाउन। सी, सो हियर वी विल राइट डॉग एंड बॉल एंड हियर वी विल राइट सिम्बा। नेक्स्ट इज I use Camlin colors for painting. तो यहाँ पे क्या लिखा है, I use Camlin colors for painting. मैं Camlin कंपनी के जो कलर्स है वो यूज करती हूँ पेंटिंग के लिए, ठीक है। सो हियर Camlin it is the proper noun and colors this is the common noun. So color it is the name of a thing and Camlin it is a particular name of the colors company, right? So यहाँ पे अब आप देखो mother है वो क्या है, common noun है and ऋतु that is the proper noun, it's a name of a person. यहाँ पे my favorite city is Ahmedabad, तो city है वो क्या है, common noun है और Ahmedabad क्या है, proper noun, because Ahmedabad is a name of a city, a particular name of a place, remember. Now my dog Simba is playing with a ball. तो मेरी डॉग तो है बट डॉग का नाम क्या है, सिम्बा। सो डॉग इज अ कॉमन नेम एंड सिम्बा इज ए प्रॉपर नेम एंड माई डॉग इज प्लेइंग विथ ए बॉल। तो बॉल भी क्या है, कॉमन नाउन है। कुछ यहाँ पे बताया नहीं है कि कैसा बॉल है, सिर्फ बोला है कि बॉल के साथ खेल रही है। सो बॉल इज ऑल्सो ए कॉमन नाउन। देन आई यूज कैमलिन कलर्स फॉर पेंटिंग। मैं कैमलिन कलर्स पेंटिंग के लिए यूज करती हूँ। जो कलर्स तो मैं यूज कर रही हूँ लेकिन उसमें भी उसकी कौन सी कंपनी है, कैमलिन इज द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ ए कलर। सो हियर color is a common noun and Camlin is a proper noun.
सो दिस वे यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। इसी तरह से आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स को अलग अलग कर सकते हो और ईजिली उस चीज़ को आप समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ का अगर पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम हुआ तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, प्रॉपर नाउन्स में। और अगर किसी भी चीज़ का कोई जनरल नेम है तो वो सारे नेम्स क्या है, कॉमन नाउन्स है, ठीक है। सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बोथ टर्म्स, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। और आपको पता चल गया होगा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन किससे कहते हैं, राइट। यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस एट योर होम ऑल्सो। घर पे भी आपको इन सारी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप दैट यू ऑल लाइक्ड आवर वीडियो, सो प्लीज़ like, share, comment and please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.